हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम अगस्त 16, 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। जो पहला न्यूज़ आ रहा है और बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है दैट अफगान प्रेसिडेंट घानी लीव्स कंट्री एज तालिबान रीच काबुल एंड इंसर्जेंट्स से दैट दे विल सून डिक्लेयर एन इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो हम पिछले हफ्ते पूरा अफगानिस्तान का इशू डिस्कस कर रहे थे एंड वी सॉ दैट हाउ city after city, provinces after provinces are falling to Taliban, and how the defense forces of Afghanistan were incapable of protecting the Afghanistan from falling to Taliban, and now it has reached its climax where the Taliban has entered the capital city Kabul. Okay, and they are soon going to declare the Islamic Emirate of Afghanistan. Now whether it is India or whether it is US and any other countries, now they are operating the military flights to evacuate their citizens, diplomats and consulate officers from Afghanistan. आगे के इश्यूज़ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, हम इसको आगे करते भी रहेंगे और वी विल सी दैट हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड ओवर देयर. Yesterday was the 75th Independence Day and we completed 74 year of independence and 75th year has started from yesterday. So the Prime Minister's speech at Red Fort. एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखने का है वो ये है कि इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच होता है वो रेड फोर्ट से होता है और रिपब्लिक डे का जो परेड होता है वो फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन होता है. सो हियर द सम न्यू थिंग्स व्हिच हैव बीन coined is that for the next 25 years till we celebrate the 100th year of independence, a term has been coined, सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास and सबका प्रयास. So this is one important thing, and then the next 25 years will be celebrated as Amrit Kal. Then in this there was some significant issues like the COVID-19, the people who have fell to COVID-19, the untiring work of doctors, nurses, sanitation workers, scientists and entrepreneurs, इनको इन्होंने याद किया और इनको प्रेज किया. साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया है जो हम आगे देखेंगे अबाउट द गति शक्ति द रुपीज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. उसके बाद हम आते हैं NV Ramanna, CJI NV Ramanna. Now he has said that there are whenever the laws are framed, there are ambiguity in laws triggering litigation and causing inconvenience to citizen. खासकर जो अभी जो मानसून सेशन कंक्लूड हुआ है उसमें हम लोग आगे भी देखेंगे कि जो जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 जब पास हो रहा था, सो देयर वाज a small fight you can say between opposition party members and marshals of the राज्य सभा, और उसके ऊपर अब स्क्रूटिनी भी किया जा रहा है बाय द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एज वेल एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हर्षवर्धन सिंह. यहाँ पे जो बात हुई है, एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल आया है 2021. इसमें जो ये बिल है इट हैज़ अबॉलिश्ड द 9 appellate tribunals इंक्लूडिंग द फिल्म सर्टिफिकेट appellate tribunals. अब ये जो अधिकार है ये वापस हाई कोर्ट को चले जाएगा. Then there is something which is related to the appointment of members and chairperson of the tribunals. उनका जो एज है मिनिमम वो 50 years का किया जा चुका है and that is like something which the Supreme Court had ruled down earlier in 2019. At last it talks about the Legal Services Aid, NALSA, National Authority on Legal Services Aid. Okay, so the NALSA has provided the total cases looked by NALSA, of that it caters to the 75% of the total population. उसके बाद मेघालय मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लखेम रुमबाई, he has resigned because an earlier day the killing of former extremist leader had taken place, which triggered the unruly situation and which climaxed during the Independence Day. Not very important. Tracking the highest battlefield in the world, यहाँ पे सियाचिन की बात हो रही है. कुछ important यहाँ पे वो है कि यहाँ पे there will be a team of people with disabilities who will begin their journey to the Siachen glacier, which will commence on September 1, 2021. The final ascent from base camp, Siachen base camp, to Kumar Post, which is at an altitude of 15,632 feet, it will commence on September 1, 2001. Now this is being organized by Team
क्लॉक, टीम क्लॉक ये पूरा एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज कर रही है। टीम क्लॉक क्या है? सो ओवर हियर क्लॉक ग्लोबल was set up in January 2019 by Major Vivek Jacob, a retired para special forces officer, with the aim of teaching life skills to adventurers and people with disabilities. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज स्टेट से रिलेटेड है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट योगा क्लासेस ऑल ओवर द सिटी फ्रॉम October 2nd. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ऑन संडे अनाउंस दैट इट हैज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन 3 of its degree courses that will provide students with an opportunity to earn while they learn the job. अब ये 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? BBA रिटेल मैनेजमेंट, BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन, BMS ई कॉमर्स ऑपरेशंस। ये वन लाइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम आ रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, द बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ये पहला स्कीम होगा विच विल यूज स्मार्ट हेल्थ कार्ड टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट टू एटलीस्ट ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर एनम। तो इसको आप याद रखेंगे, ये एलियट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वन लाइनर कैन बी अबाउट द मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये कौन से स्टेट में है? सो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। मेकेदातु इज द ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। इट इज द रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू रिवर कावेरी। रिवर कावेरी, यहाँ पे इशू ये है कि कावेरी ट्राइब्यूनल ने कर्नाटका को एडिशनल वाटर एलोकेट किया था ड्यूरिंग इट्स जजमेंट। तो अब क्या हुआ कि उस एडिशनल वाटर को यूटिलाइज करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड द मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। नाउ कर्नाटका टू लॉन्च 13 अमृत स्कीम। 13 अमृत स्कीम होगा दिट विल बी रिलेटेड टू रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट्स, फार्मिंग, सोशल सेक्टर्स, विच इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट द एक्सचेकर ओवर ₹720 crore. Okay, so these are the popular schemes, the areas in which this scheme will be launched. आपको बस इतना याद करना है कि 13 अमृत स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है। We will come to editorial later. Now this is like a revision of all the important schemes of the government. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो सबसे पहले आ रहा है कि नाउ August 14 विल बी रिमेंबर्ड एज पार्टीशन ऑरल रिमेम्बरेंस डे। ओके, पार्टीशन हुआ था जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, तो अब August 14 विल बी, August 15 इज इंडिपेंडेंस डे, August 14 विल बी पार्टीशन ऑरल रिमेम्बरेंस डे। उसके बाद एक गति शक्ति इनिशिएटिव की बात हो रही है विच इज़ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। इसका टोटल एलोकेशन है ₹100 लाख करोड़। एलेट में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर कि गति शक्ति इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द एलोकेशन? सो ₹100 लाख करोड़। उसके बाद कुछ मिशंस की बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड द टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, उज्ज्वला कुकिंग गैस स्कीम, उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च हुआ है फोकसिंग ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स, देन प्रधानमंत्री आवास योजना, देन जन धन बैंक योजना। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद एक स्लोगन दिया गया है, छोटा किसान बने देश की शान। यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स का डेफिनेशन क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि स्मॉल फार्मर्स हम उनको बोलते हैं जिनकी जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टर्स से कम हो या 2 हेक्टर्स तक हो, उससे ज़्यादा नहीं। 2 हेक्टर्स तक को हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं, अगर 1 हेक्टर से कम है तो हम उसे मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन टोटल फार्मर्स पॉपुलेशन इन इंडिया? सो इट इज़ 80%। सो इट इज़ 80%। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे INS विक्रांत की बात हुई है। INS विक्रांत विच विल बी लेटर इंडक्टेड इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर और नेक्स्ट ईयर। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया एंड इज बिन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड। ये अभी अभी अपना ट्रायल कंप्लीट किया है। उसके बाद एक इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ आया है, एक डेटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो द हाइड्रोलॉजिकल कैलेमिटीज़, व्हाट आर द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज़? दीज आर लाइक फ्लैश फ्लड्स, लैंड स्लिप्स एंड साइक्लोन. ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में देखा गया है. इसमें क्लाउड बर्स्ट भी हम इंक्लूड करते हैं. खास करके वो कौन सा टाइम होता है पूरे ईयर का व्हेन दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट? सो इट इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अप्रैल टू अक्टूबर. और अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वहाँ पे खास करके अप्रैल से लेके दिसंबर तक. दिस इज़ द पीरियड व्हेन द हज़ार्ड, द डिज़ास्टर ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल रिलेटेड हज़ार्ड्स आर टू मच प्रोमिनेंट इन दिस. उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल के बाद देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पे देखा गया है? मध्य प्रदेश एंड केरला में. केरला की अगर हम खास बात करें तो केरला एक ऐसा इलाका है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होता है. सेकेंड, इट इज़ टोटली अ माउंटेनियस एरिया भी है, इट इज़ अ कोस्टल एरिया ऑल्सो. सो वेन एवर द साइक्लॉन्स which have become prominent in Arabian Sea and landslides due to mountainous topography. इसकी वजह से केरला में जो हज़ार्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा देखी गई है. ओके, नाउ इफ़ यू विल सी द साइक्लॉन्स, तो साइक्लॉन्स जैसे कि अगर हम साइक्लॉन यास की बात करें जो अभी लैंडफॉल किया था उड़ीसा में, द होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट सेज कि भले उड़ीसा में उसने लैंडफॉल किया बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसने वेस्ट बंगाल में किया था. उसके बाद अगर हम पास्ट 3 इयर्स के साइक्लॉन्स को देखो तो यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है फानी इन मई 2019, बुलबुल इन नवंबर 2019, अम्फान इन मई 2020, यास इन मई 2021. या तो ये स्कीम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सारे स्कीम्स में ये बताया गया है कि इस बार की जो स्कीम थी कोई नया स्कीम अनाउंस नहीं किया गया. जैसे कि कुछ चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल गति शक्ति इनिशिएटिव ऑफ ₹100 लाख करोड़ फॉर क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान फॉर द कंट्री. इसकी बात पहले भी की जा चुकी है. उसके बाद अभी फिर टॉक अबाउट मेकिंग सैनिक स्कूल्स एज कोविड स्कूल्स, तो ये डिसीजन जो है डिफेंस मिनिस्टर ने 2019 में ले लिया था. देन नेशनल हाइड्रोजन मिशन वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ हाइड्रोजन फॉर क्रिएटिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इसके बारे में भी ये बजट में पहले ही अनाउंस हो चुका है. देन द प्लान टू फोर्टिफाई राइस विद आयरन एंड विटामिन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू PDS एंड मिड डे मील स्कीम, इसके बारे में द लेट रामविलास पासवान हु वाज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने इसके बारे में डिसीजन पहले ही ले लिया था. अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है अबाउट राइजिंग जुडिशियल वैकेंसीज विच पोज द चैलेंज. तो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है. पहले हम कॉलेजियम सिस्टम समझ लेते हैं. कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, सो द कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है. अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखें कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहाँ पे दिया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस, बट देयर आर 3 केसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट जजेस केस, द सेकेंड जजेस केस एंड द थर्ड जजेस केस. इन सारे केस में सेकेंड जज केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That is called as a concept division of power between the executive and judiciary. प्रेसिडेंट को जज को अपॉइंट करना है तो हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव किसी पर्टिकुलर जज को फेवर करे. उस चीज़ को काउंटर करने के लिए देयर आर सेकेंड जज केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई द सेकेंड जजेस केस ऑफ 1993 इट स्टार्टेड द कॉलेजियम सिस्टम. पहले फर्स्ट जज केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कैन प्रपोज द नेम्स ऑफ द जजेस टू बी अपॉइंटेड, बट अल्टीमेटली डिसीजन एग्जीक्यूटिव का होगा. बट सेकेंड जजेस केस इट स्टार्टेड द कॉलेजियम सिस्टम. इसने बोला कि द नेम्स टू बी फॉरवर्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये जो CJI जो नेम फॉरवर्ड करेंगे ये उनको आफ्टर CJI 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही ये नाम फॉरवर्ड करना पड़ेगा. एंड देयर शुड बी अ कंकरेंस ऑन द नेम. फिर थर्ड जजेस केस आया. थर्ड जजेस केस ने कॉलेजियम की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, 3 से उसको 5 कर दिया. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू कॉलेजियम. अब यहाँ पे जुडिशियल वैकेंसी की बात हो रही है. कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे खास करके आपके एग्ज़ाम के हिसाब से. यहाँ पे बात हो रही है कि
that today's collegium, okay, today's collegium has to appoint the judges for the सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ बीन फ्रोजन सिंस 2019। तो यहाँ पे एक जस्टिस राव की बात हो रही है, जस्टिस नागेश्वरा राव, जस्ट लाइक जस्टिस रोहिंटन नरीमन हु वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड फ्रॉम द बेंच। जस्टिस राव इज ऑल्सो अ जज हु हैज़ बीन डायरेक्टली अपॉइंटेड फ्रॉम द बेंच। ये सबसे पहला इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड इंफॉर्मेशन विच इज important is that today the Chief Justice of India is Justice N.V. Ramanna. After him, Justice U.U. Lalit is going to be the CJI of India, and after Justice U.U. Lalit, Justice Dhananjay Chandrachud, he will be going to be the CJI of India till November 2024. उसके बाद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है खासकर इस पैराग्राफ में कि कॉलेजियम सिस्टम कौन कौन से 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के जजेस का नाम प्रपोज करती है। तो पहला तो है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, मीन्स देयर शुड बी एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच एंड एवरी हाई कोर्ट, दैट्स फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ कन्वेंशन। सेकेंड, दैट सीनियोरिटी, एंड द थर्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज मेरिट, इट इज़ मेरिट। उसके बाद यहाँ पे वुमेन जज की बात हो रही है। अभी तक पूरे हाई कोर्ट में ओनली देयर इज़ अ तेलंगाना हाई कोर्ट विच हैज़ अ वुमेन एज अ चीफ जस्टिस, तो उनका नाम है चीफ जस्टिस हिमा कोहली। शी इज़ द सोल वुमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राइट नाउ। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट में भी वैकेंसी बहुत कम है। हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, उसमें अभी तक टोटल 455 जुडिशियल वैकेंसीज है। अगर टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ देखें तो 1098 है। आपको टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब हम आते हैं साइबर टेररिज्म एंड सेक्शन एंड आईटी एक्ट 2000। तो एक सेक्शन 66F है, सेक्शन 66F ऑफ द आईटी एक्ट 2000। दिस सेक्शन 66F हैज़ पेनाल्टी फॉर साइबर टेररिज्म। पहले तो ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज साइबर टेररिज्म, और फिर ये बताता है कि साइबर टेररिज्म की पेनाल्टी कितनी होगी। इट इज़ इम्प्रिजनमेंट विच कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो एक फॉर्मर आरएसएस के आइडियोलॉग हैं जिनका नाम है KN गोविंदाचार्य। इन्होंने पहले भी एक पेटिशन फाइल किया था जब पेगासस की इशू पहले 2019 में उठी थी, दैट फेसबुक, व्हाट्सएप, NSA group, they are involved in illegal surveillance amounting to cyber terrorism and action should be taken against them for cyber terrorism. उसके बाद आपके लिए वन लाइनर फिर से आ गया है, that the West Bengal's Transport Department on the Independence Day launched a mobile museum on the freedom struggle and partition of Bengal by turning the 2 trams into गैलरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इट वाज द कोलैबोरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो जो 2 ट्रैम्स थे उसमें देखिए, द फर्स्ट कार थी, इट वाज हाईलाइटिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश राज फ्रॉम 1900 to 1947, एंड द सेकेंड कार वाज फोकसिंग ऑन द मास माइग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन दैट टुक प्लेस पोस्ट पार्टीशन। तो वन लाइनर में आपको आ सकता है। उसके बाद जो ये न्यूज़ है, ये जस्ट यू हैव टू रीड द टाइटल बिकॉज नथिंग इज़ वेरी न्यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको बस इतना देखना है कि तालिबान का रिजिम जो पहले था, इट वाज फ्रॉम 1996 to 2001। अगर इस न्यूज़ को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो यही है कि तालिबान के आने से देयर आर फियर दैट देयर कैन बी रिप्रेसिव पॉलिसीज प्रैक्टिस्ड बाय देम एज ऑब्जर्व बिटवीन 1996 to 2001, especially against the women, and that's why the migration, or you can say the refugee conditions in Afghanistan can become acute. और यही एक रीज़न है why India is very much concerned about the situation in Afghanistan. उसके बाद after quake kills 724, Haiti looks for survivors. अब हाइती में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। क्यों आता है? Because there is a concept that Haiti lies on Pacific Ring of Fire. एक एरिया है which surrounds the Pacific Ocean, which is called as Pacific Ring of Fire. This area is dominated by earthquake and volcanism. So Haiti, it lies on
Pacific Ring of Fire. Some other prominent countries which are lying on Pacific Ring of Fire is New Zealand, Japan, South Korea, Peru. These are all lying on the Pacific Ring of Fire, and that's why they are prone to earthquake and volcanism. उसके बाद एक और वन लाइनर, मलेशियन पीएम टू ऑफर द रेजिग्नेशन टुडे. तो उस मलेशियन पीएम का नाम इंपॉर्टेंट है. दैट नेम इज मुहिद्दीन यासीन. ही विल बी ऑफरिंग द रेजिग्नेशन टू द किंग ऑफ मलेशिया. देन जापान मिनिस्टर विजिट्स कंट्रोवर्शियल साइन. टोक्यो में एक कंट्रोवर्शियल साइन है दैट इन सेंट्रल टोक्यो विच ऑनर्स द 2.5 मिलियन वॉर डेड, and it is also the shrines of senior military and political figures. Now, why China and South Korea are protesting? Because during World War II, Japan was the aggressive country, imperialist country, conquering certain parts of China and South Korea and committing atrocities over there. So, visiting that shrine and honoring that military officers who have been already convicted by the International War Tribunals on Far East, ये उनको अच्छा नहीं लगा, बिकॉज द हिस्ट्री इज़ वेरी वायलेंट रिलेटेड. उसके बाद हांगकॉन्ग डेमोक्रेसी ग्रुप डिसबैंड अगेन. वन लाइनर कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज इन हांगकॉन्ग बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, द हांगकॉन्ग सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट हैज डिसाइडेड नॉट टू ऑपरेट एनी मोर गिवन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. उसके बाद एक बहुत ही वर्ल्ड वॉर II से रिलेटेड एक और न्यूज़ है. इजराइल कंडम्स पोलैंड रेस्टिट्यूशन लॉ. वर्ल्ड वॉर II के पहले द Jew population in Europe was distributed in Germany, Poland, other areas. जैसे जैसे जर्मनी वर्ल्ड वॉर II के टाइम एरियाज कॉन्कर करती चली गई, फॉर एग्जांपल पोलैंड को कॉन्कर किया, तो पोलैंड में जितने भी ज्यूज थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया और फिर उनको टर्मिनेट करने की कोशिश की, जिसका पूरा नाम है होलोकॉस्ट. सो होलोकॉस्ट वाज द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ द ज्यू पीपल. अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो ज्यू सर्वाइवर्स थे दे केम टू इजराइल, बट वहाँ पे उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है. दैट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड बाय द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड टिल बिफोर 1989. अब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, एंड्रेस डूडा, ही हैज साइंड अ लॉ विच एड्रेसेस दैट appropriations done by the communist government that ruled Poland from the end of Second World War till 1989 is okay. It means that कि जितने भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ थे which belong to Jew people और उनके डिसेंडेंट इजराइल में रहते थे, उन सारे प्रॉपर्टीज़ को पोलैंड गवर्नमेंट ने अपने पास कब्जा कर लिया. ओके, एंड दैट लॉ हैज़ बीन नाउ अप्रूव्ड. सो दैट हैज़ ब्रॉट पोलैंड एंड इजराइल इन डिप्लोमेटिक टफ सिचुएशन, और यू कैन से डिप्लोमेटिक क्राइसिस. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होना चाहिए. इजरायली, एक तो पोलिश प्रेसिडेंट अंद्रेस दूदा, देन इजरायली प्रेसिडेंट नफ्ताली बेनेट, एंड देन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल यार लैपिड. उसके बाद एक न्यूज़ आ रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स which is scheduled to begin in Nairobi in Kenya on Tuesday. तो ये आ सकता है कि वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स was hosted by which country? So it was Kenya. उसके बाद इंडियन रिकर्व आर्कर्स, दे हैड अ वेरी गुड डे एट वर्ल्ड यूथ आर्करी चैम्पियनशिप. अगर हम यहाँ पे बात करें, विशाल चंगमई, अमित कुमार एंड विकी राहुल, दे बीट फ्रांस बाई 5-3 to emerge as the champion. Then Vishal and Tamanna, they defeated Japan 6-2 for the cadet mixed team title. Then Parag Salunke, Aditya Chaudhary and Veer Dhiraj, they helped India rally to beat Spain 5-3 and win the junior men's crown. Then Salunke and Komalika Bari got the better of Spain 5-3 to claim the junior mixed team gold. Then Komalika, she defeated Elia Canas of Spain and she emerged victorious in the junior women's individual final. So these are our 7 medalists. इनका नाम यहाँ पे दिया गया हुआ है. It is a very good article for revision. Neeraj Chopra for javelin throw, then Mirabai Chanu for wrestling, then Ravi Dhaiya, then Lovlina Borgen, PV Sindhu, Bajrang Punia, and then hockey team captain Manpreet Singh. So they have won there are 7 gold medals won by India at Tokyo Olympics, और इनके सारे विनर्स हैं. उसके बाद यहाँ पे बस एक ये आ रहा है, निज़ाम्स गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद
which sport? So it is associated with horse racing. अब हम मेमोरीज की बात करेंगे। ये एडिटोरियल्स पे हम आते हैं और आज के एडिटोरियल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक a bit of historical information they are giving everywhere. So we have 3 articles based on history evolution of India. We will focus on that. तो अगर हम मेमोरीज की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टाइम है जो हमने पहले डिस्कस किया गया है कि अगस्त 14 विल बी सेलिब्रेटेड एज पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे। कि हमारा जो इंडिपेंडेंस था इट वॉज एसोसिएटेड विद सम टफ मेमोरीज। वाई? बिकॉज इफ यू विल सी that about 2 million 20 lakh people were killed, 1 lakh women were kidnapped and raped, and more than 15 million men, women and children were displaced. So this is one of the very horrific story. उसके बाद यहाँ पे टू नेशन थियरी की बात होती है। The two nation theory was propounded by Jinnah. It was based on religion that Hindu and Muslims cannot live together. बट जब बांग्लादेश का वॉर हुआ एंड व्हेन द बांग्लादेश वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान, पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो पाकिस्तान वाज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। देन इन 1971 बांग्लादेश emerged as an independent country. Then what happened? This two nation theory propounded by Jinnah held no ground. उसके बाद ये आर्टिकल बात करता है कि the violence associated with the this thing independence और partition, इट इस यहाँ पे ब्रिटिश का जो रिलीजियस आउटलुक था इंडिया के टूवर्ड्स की, दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसका बहुत ज़्यादा हाथ था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेन एवर रिलीजन इज ब्रॉट इन टू द पब्लिक पॉलिसी देन देयर विल बी a social division, disharmony and going against the society. That's why every Indian should promote the spirit of oneness, social harmony and human empowerment. अब इस आर्टिकल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है अबाउट द फिजिकल डेफिसिट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हैज़ कम अप विद द वाइट पेपर ऑन इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है कि जो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है, ओके, एंड द ओवरऑल टैक्स टू GSDP रेशियो ये बहुत नीचे जा चुका है। और उसके बाद अगर हम तमिलनाडु में अगर डेप्ट की बात करें तो पर फैमिली देयर इज़ अ डेप्ट ऑफ 2,63,976 रुपीज़ एंड 3 सेक्टर्स आर स्ट्रगलिंग, दे आर वाटर, पावर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब इसको डील करने के लिए द गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी बेनिफिशरीज। तो इसको करके हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे है कि इफ़ द तमिलनाडु ट्राई टू स्क्वीज द फिजिकल डेफिसिट टू मच, तो हम लोग कोविड से अभी रिकवर कर रहे हैं तो हमारी जो रिकवरी है वो फॉल बैक हो सकती है। सो द बेटर अप्रोच इज दैट वी शुड फोकस ऑन बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशरीज। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं रीजनल आइडेंटिटी एंड बीइंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहली बात तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा कर्नाटका पे फोकस कर रहा है और कर्नाटका के जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उस पे आ रहा है। तो द फर्स्ट इज अबाउट द रेवेन्यू डेफिसिट। ये कह रहा है कि कर्नाटका का रेवेन्यू डेफिसिट पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। अगर हम 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, द फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट डिसाइड्स दैट हाउ मच ऑफ द revenue should go to the states and how and that revenue means the devolution of taxes. So कितना devolution होना चाहिए to taxes and how much the each state should get. तो अगर हम दो फाइनेंस कमीशन को 13th एंड 14th को कंपेयर करें तो 13th फाइनेंस कमीशन ने 4.72% एलोकेट किया था, उसी जगह पे 14th फाइनेंस कमीशन ने 3.64% एलोकेट किया। इसका मेजर रीज़न ये है कि because of low population in Karnataka. So this article is saying, the author is saying that is Karnataka being penalized for having better population control? Then it says that Karnataka, ठीक है ना, ये कहता है कि अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो 6 स्टेट्स साउथ ऑफ द इंडिया कंट्रीब्यूट मोर टैक्सेस एंड गेट लेस। अगर हम जैसे बात करें उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश ₹1 रेवेन्यू जनरेट करता है तो उसको 1.79 रुपीज़ की हेल्प मिलती है, कर्नाटका को उसी जगह पे 0.47 ही मिलता है। साथ में अगर हम GST सेस की बात करें
दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी सेस है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो भी नहीं मिल रहा है. देन कमिंग टू द स्पेसिफिक इश्यूज, the specific issues is related to Karnataka flag. So the Karnataka, it has its own flag, and Karnataka wants it to be listed under the emblems and नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, जिसको अभी तक सेंटर ने अप्रूव नहीं किया है. फिर यहाँ पे सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाउ द सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 में ये है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द सोल अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट. The union government and the state government can make laws on concurrent list, and state government can make the laws on state list. तो यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द 3 लैंग्वेज फार्मूला. और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि स्टेट्स हु डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू अपॉइंट टीचर्स फॉर एवरी लैंग्वेज, सो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, इंग्लिश एंड हिंदी विल बिकम कंपल्सरी. अब हम इस आर्टिकल की तरफ आते हैं. ये आर्टिकल इस it is a timeline, it is a outline of India's journey from 1947 to 2021. और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस आर्टिकल को एक बार 2 बार पढ़ें. तो इसमें एक बात हो रही है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ओके, सो इंडिया का जब आज़ादी हुआ था तो इंडिया वॉज द जस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री. अगर हम आज की बात करें तो इंडिया के पास 3 मेजर चैलेंजेस आ रही हैं. तो एक तो है कि कोविड-19 और इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड कंपटीशन विद चाइना, थर्ड इज टर्मोइल इन अफगानिस्तान. अगर आज हम देखें तो इंडिया के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है इसको टैकल करने की. पर अगर हम इंडिपेंडेंस से बात करें इसकी, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंडिया वाज जस्ट इंडिपेंडेंट और उस वक्त वर्ल्ड अफेयर्स वाज वेरी मेसी. देन इंडिया केम अप विद द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM कहते हैं, NAM कहते हैं इसको. इसमें क्या था कि इंडिया वांटेड टू रिमेन अलूफ ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स. अगर हम इंडिया की बात करें तो मिड 1950 से पहले तक द वेस्टर्न कंट्रीज वेर प्रोवाइडिंग मोर डेवलपमेंट फंड्स टू इंडिया, बट आफ्टर 1950 द थिंग्स चेंज एंड देन द सोवियत यूनियन started extending support to India. After that India was going very good. We were overcoming the problems just after the independence. But जैसे ही 1962 का वॉर आया, it was a very bad setback, followed by the 1965 war with पाकिस्तान. उसी के बाद तुरंत चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया and that made India very apprehensive कि नेबर में किसी के पास न्यूक्लियर पावर है, we can be attacked anytime. But still if we will see that after that we had a green revolution and जो हमारा एक फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ. फिर हम 1970s और 1980s के एरिया में आते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि नाउ देयर वाज द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एंड द बांग्लादेश वॉर विच इंडिया वोन. देन द इकोनॉमी वॉज रिलेटिवली क्लोज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन दिस पीरियड इज ऑल्सो मार्क्ड बाई सिक्योरिटी चैलेंजेस. फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया ने जब स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किया था पोखरन में, द फर्स्ट पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, इट वॉज फॉलोड बाय एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम, competition with Pakistan over Siachen, then standoff with China, intervention in Sri Lanka, the Tamil issue, then counter coup in Maldives. Then there was some domestic security challenges, for example the Punjab issue, Jammu and Kashmir, Northeast issue. Okay, so these were happening at that time of time. Then after the Cold War era, means after the 1991, there was the balance of payment crisis. Along with that, there were certain security challenges. For example, assassination of Rajiv Gandhi, 1993 Bombay bombings, insurgency in Jammu and Kashmir, which were giving, मतलब इंडिया बहुत ही security threat में चल रहा था, बहुत precarious period था वो इंडिया का. But वही period is also marked by economic reforms in India. न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी की जहाँ पे हम एशियन कंट्रीज के साथ अपना इकोनॉमिक रिलेशन डीपन करेंगे. उसके बाद देयर वाज बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट विद चाइना 1993 एंड देन contacts with military contacts with US started warming or started deepening,
एंड देन देयर वाज प्रिपरेशन फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। उसके बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में जैसे ही आते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो टू मेजर पावर्स के साथ हमारी रिलेशन थोड़ी सी अच्छी हुई इवन आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति इन 1998, द पोखरण टेस्ट 2। बट उसी वक्त जब हमने कारगिल वार भी देखा, हमने इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 टू कांडार भी देखा और पार्लियामेंट भी देखा। बट एक स्वीट स्पॉट उस वक्त इंडिया का ये था कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था विच वॉज प्रोपेल्ड बाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज वो बहुत ज़्यादा था। आफ्टर 2004 जब जो गवर्नमेंट आई, इट साइन द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इसको हम 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या था कि सिंस इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इंडिया कैन नॉट ट्रेड इन न्यूक्लियर मटेरियल। बट दिस 1-2-3 एग्रीमेंट विद यूएस, जिसको हम इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, दिस अलाउड इंडिया टू हैव द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ यूरेनियम। 2003 में हम आते हैं तो चाइना के साथ हमारा असर्टिव चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। वी हैव डोकलाम इशू, देन वी हैव गालवान वैली इशू इन 2021। इंडिया रिजेक्टेड द बीइंग द पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस चाइना को काउंटर करने के लिए देन इंडिया ज्वाइंस क्वाड, ओके, एंड एम्फेसिस हैज बीन गिवन टू नेबरहुड कनेक्टिविटी, ओके। सो दैट्स व्हाट दैट अगर हम इंडिया की ऑब्जेक्टिव देखें तो आज इंडिया का सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गया है। फिर भी इंडिया के कुछ बेसिक पॉलिसीज़ हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो आज भी वैसे ही कि वैसे हैं, चेंज नहीं हुआ है, ओके। इंडियाज़ एक्शंस माइट हैव चेंज्ड, इंडियाज़ पॉलिसीज माइट हैव चेंज्ड, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन्स द सेम। दे आर डेवलपमेंट, रीजनल सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर एंड शेपिंग ऑफ इंटरनेशनल कंसेंसस टू बी मोर एमिनेबल और फ्रेंडली टू इंडिया, ओके। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से रिलेटेड है कि ओथ किसके नाम पे लिया जाए। सो यहाँ पे एक इशू हाईलाइट हुआ है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स इन कर्नाटका टुक ओथ रिसेंटली इन द नेम ऑफ गॉड और इन द नेम ऑफ द गॉड विच दे लाइक। बट हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए साइलेंट है, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड सेकुलरिज्म एज द प्रिंसिपल। सो यहाँ पे एक डिसाइड किया गया है कि बेटर होगा कि हम सोलमली अफर्म टर्म यूज़ करें rather than taking the name of the God, and for that thing we should have an amendment, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इन द नेम ऑफ द गॉड जो ओथ में है इट शुड बी रिप्लेस्ड विद सोलमली अफर्म्ड। उसके बाद दिस आर्टिकल मोर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट या फॉर इंग्लिश इट विल हेल्प यू। देन दिस इज अबाउट during the Independence Day, where was Gandhiji? So he was in Noakhali, which is now in Bangladesh, to stop the Hindu-Muslim riots. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट की बात होती है कि like our Bapu Mahatma Gandhi, why he was called as Mahatma? When every politicians of that time, when they were celebrating the independence, he was spending his time in controlling the riots, pacifying both the communities. He started from Peshawar, he went to Calcutta, from Calcutta he went to Noakhali। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट आता है कि एक मुस्लिम लीग के नेता थे सुधारवादी सुहरावर्दी, इन्होंने कहा कि आप कलकत्ता छोड़ के मत जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि ओके फाइन, आप इंश्योर कीजिए कि कलकत्ता में कोई भी किलिंग नहीं होगा तो मैं नोआखाली नहीं जाऊँगा। सो आफ्टर दैट ऑल्सो देयर वॉज लॉट ऑफ वायलेंस इन कलकत्ता, बट देन ऑल्सो गांधी जी डिडंट गिव अप, एंड देन देयर इज़ अ वेरी गुड मैसेज जो आज भी बहुत वैलिड है, दैट बापू सेंट अ मैसेज टू द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू he wrote that from today you have to wear the crown of thorns, strive ceaselessly to cultivate truth and non-violence, be humble, be forbearing, now you will be tested through and through, beware of power, power corrupts, do not let yourself be entrapped by pomp and pageantry, remember you are in office to serve the poor too in India's village. A very nice message, okay. So that's all for today my friends, we will meet tomorrow again with the daily Hindu news analysis. Please comment how you are liking the video. If you have any doubt you can ask me in the comment box, and please answer my questions also which I have asked. Thank you everyone, have a nice day.